Hello students. So this is second lecture for the chapter properties of gases. So in this lecture we will try to understand different terms related with the gases. So first in last lecture also we discussed that PV is equal to MRT. Pressure into volume is equal to mass into gas constant into temperature. So gas constant, value of gas constant is different for different gases. Suppose value of R is different for oxygen. It is different for the nitrogen, different for the air. So for all the gases, value of R will be different. Clear? So PV is equal to MRT. So what we can do? We can do one thing, that we can uh, write write down this M here. We can write down this M here. So here this will be RT. So final answer will be PV small v is equal to RT. Now small v means it is known as specific volume. Small v means specific volume. What is the unit of specific volume? Meter cube per kg. And what is the unit of volume? It is meter cube. So that you need to remember that what is volume and what is specific volume. Specific volume means meter cube per kg. Its symbol is small v, and volume means its symbol is capital V. Now this is the equation. But we all know that we are sometime using the equation PV is equal to n ROT. So what is that? That we will discuss. So here PV is equal to MRT. So we will convert this equation. So here what we will do? Here we will divide this with capital M, molecular mass, and again here we will multiply it with molecular mass. So this will become our N. ये जो है क्या बन जाएगा हमारा? This will become our N. And ये जो combination है, this combination will become our RO. Clear? Universal gas constant. So we all know that what is molecular mass. Suppose we will take example of hydrogen. So what is molecular mass of hydrogen? 2 into 1. So basically it is 2. What is molecular mass for oxygen? We know that 16 into 2. 2 into 16. So basically this is our 32. This will be our 32. Clear? So we all know that what is molecular mass. Clear? So this will be our M divided by M. And what is the unit of molecular mass? Suppose for hydrogen, our molecular mass is 2. And what will be its unit? Its unit will be kg per kg mole. Its unit will be kg per kg mole. Clear? kg per kg mole. So what would be the unit of N? N का unit क्या होगा? What would be the unit of N? So we all know that what is unit of M? M is kg. Clear? And at the bottom we have capital M. Capital M means kg per kg mole. तो यहाँ पे kg mole यहाँ पे लिख सकते हैं हम ऊपर. तो यहाँ पे हो गया हमारा kg mole. तो ये kg कैंसिल होगा. तो इसका यूनिट क्या रहेगा? kg mole. kg mole, mole, gram mole. So unit of N will be kg mole. And we can also write, or we can also find out the unit of these combination, that is known as universal gas constant. इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो इसका यूनिट क्या रहेगा वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर? आर का यूनिट क्या है हमें पता है कि जनरली वी आर यूजिंग यूनिट ऑफ आर किलो जूल पर केजी केल्विन. इसका यूनिट है किलो जूल पर केजी केल्विन. आर का यूनिट है. तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कैपिटल एम. कैपिटल क्या एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास. केजी पर केजी मोल. यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम ये जो है केजी पर केजी मोल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा. ये कैंसिल हो जाएगा हमारा. केजी कैंसिल हो जाएगा.
बराबर। तो हमारा यूनिट रहेगा किलो जूल पर केजी मोल केल्विन, सो दैट विल बी यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. So remember, for all the gas, for different gas, value of R will be different, but RO, universal gas constant value, will be common for all the gases. Remember, for air our value of R gas constant is 287 joule per kg Kelvin, that we know. But you also need to remember the value of universal gas constant, 8314.3 joule per kg Kelvin, or 8.3143 kilojoule per kg mole Kelvin. Clear? So this was our equation. So I hope you have understood this. So here also, if you will transfer this n towards this side, if you will transfer this n towards this, means left side, so here this will be our molar volume. Clear? So this was about the PV is equal to MRT and PV is equal to NROT. So NTP and STP, normal temperature and pressure. So you need to remember that this is the pressure, that is basically normal pressure, our atmospheric pressure. This is atmospheric pressure, and 0 degree centigrade, that is known as normal temperature and pressure. And standard temperature and pressure means pressure will be same, pressure would be the same, but temperature would be 25 degree centigrade. So that is known as standard temperature and pressure. I hope you have understood this. Then after, we will discuss about internal energy. Now internal energy means whatever energy molecules, whatever energy associated with the molecules, that is known as internal energy. बराबर ना, कि मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी रहेगी, सपोज हमारे पास गैस है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन मीन्स N2. सो N2 मॉलिक्यूल्स के पास जितनी एनर्जी होगी, उसके पास एनर्जी कौन सी रहेगी? वाइब्रेशनल एनर्जी रहेगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी रहेगी, रोटेशनल एनर्जी रहेगी. तो मॉलिक्यूल्स के पास जितनी एनर्जी होगी, तो उसको उसका समेशन अगर करेंगे हम, तो वो हमारा जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी. दैट इज बेसिकली नोन एज इंटरनल एनर्जी. एंड इट्स सिंबल इज, उसका सिंबल क्या है इंटरनल एनर्जी का? दैट वी ऑल नो, इट इज डिनोटेड बाय यू. एंड एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या रहेगा? जूल, जूल किलो जूल. बराबर है. और यहाँ पे हमारे पास है एंथैल्पी. नाउ एंथैल्पी मीन्स, सपोज इफ यू विल डिस्कस इन सिंपल फॉर्म, सो इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल एनर्जी, दो का हम जब समेशन करते हैं तो एंथैल्पी हो जाएगा हमारा टोटल एनर्जी. बराबर ना. एंथैल्पी जो है टोटल एनर्जी, मतलब गैस के पास एनर्जी कितनी है? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मीन्स प्रेशर इनटू वॉल्यूम, बराबर. इंटरनल मीन्स इंटरनल एनर्जी. तो दो का जो दो एनर्जी का हम एडिशन करेंगे, व्हेन एवर वी विल ऐड बोथ द एनर्जी, सो वी विल गेट एंथैल्पी. क्लियर? So I hope you have understood this enthalpy and internal energy. Now we will discuss about specific heat. Now two type of specific heats are there: specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. So specific heat means, suppose we will discuss first about specific heat at constant volume. Suppose we will discuss about the CV. So suppose if our process is taking place at constant volume, अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, तो वो प्रोसेस में और यहाँ पे CV का यूनिट क्या रहेगा? किलो जूल पर केजी केल्विन, ये यूनिट रहेगा CV का. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमें 1 kg गैस का, अगर 1 kg गैस के लिए अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है 1 केल्विन, या फिर 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ाना है, तो उसके लिए जो हीट देनी पड़ेगी हमें, उसके लिए जो हीट देनी पड़ रही है, कौन सी प्रोसेस के लिए? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए. तो उसको हम बोलेंगे CV. दैट इज़ बेसिकली नोन एज CV, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. क्लियर? तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं. सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, बराबर. वो क्लोज्ड कंटेनर है, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे वॉल्यूम तो वही रहेगा.
और अगर हम यहाँ से हीट दे रहे हैं, इफ़ वी आर गिविंग हीट, सो व्हाट विल हैपन हियर, टेम्परेचर गेट इंक्रीज, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर जब बढ़ना स्टार्ट होगा तो जो है, बराबर ना, तो ऐसी कंडीशन में जो 1 यूनिट और 1 kg के लिए 1 केल्विन अगर बढ़ाना है, 1 kg गैस के लिए 1 केल्विन अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जो हीट देंगे हम, बराबर, तो उसको जो वैल्यू रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बराबर। तो ये वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। आपको याद रखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट देंगे हम, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो हीट दे रहे हम, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहेगी, ये पूरी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज होगी। और इंटरनल एनर्जी अगर हीट दे रहे हैं तो उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो एग्जैक्टली बोथ वैल्यू विल बी सेम, बराबर ना, जितना हीट हम दे रहे हैं उतनी ही अमाउंट में ये इंटरनल एनर्जी वैल्यू चेंज होगी। सो दिस वाज अबाउट द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपको याद रखना है कि क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, बराबर। अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर और पिस्टन है, यहाँ पे हम हीट देना है, मगर हीट जब देंगे हम तो प्रेशर तो बढ़ने लगेगा, मगर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो कैसे रख सकते हैं हम, हाउ कैन वी कीप द प्रेशर कांस्टेंट, by changing the position of piston, clear, so we need to transfer this piston from lower position to the upper position, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो आप देख सकते हो कि अगर ऐसी प्रोसेस है, अगर प्रोसेस हमारी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, तो उसके लिए हमें अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है 1 kg गैस का, तो उसके लिए जो हीट देनी पड़ेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बराबर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बराबर। तो आपको याद रखना है, तो ऐसी कंडीशन में जो हीट देते हैं हम, उसका यूटिलाइजेशन किसके लिए होता है, एंथैल्पी इंक्रीज करने के लिए। तो दो पॉइंट याद रखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट देते हैं हम, उससे क्या बढ़ता है, उसके नो डाउट एंट्रोपी, उससे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट देंगे तो एग्जैक्टली उसकी वैल्यू किसके साथ मैच हो जाएगी, उसकी एग्जैक्टली वैल्यू ये रहेगी, डेल्टा एच, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच। ये आपको याद रखना है, बराबर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द कोरिलेशन, दैट कोरिलेशन मीन्स आर इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी, बराबर है, और गैमा इज इक्वल टू सी पी डिवाइड बाई सी वी। सो ऑलवेज वी ऑल नो दैट ऑलवेज आवर वैल्यू सी पी विल बी हायर देन सी वी, बराबर ना, सी पी विल बी हायर देन सी वी। तो उसका रीज़न क्या है कि हमें पता है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो उसमें तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, बराबर ना। हम एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये प्रोसेस है तो इसमें जो हीट देंगे उसका यूटिलाइजेशन किसके लिए होगा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए होगा। मगर अगर हमारी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो उसका यूटिलाइजेशन जो है वो इंटरनल एनर्जी के लिए भी होगा और वर्क के लिए भी होगा। यहाँ पे वर्क भी हो रहा है, वर्क हो रहा है मीन्स अगर पिस्टन ट्रांसफ़र हो रहा है तो वर्क हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हीट दो एप्लीकेशन के लिए यूज़ होगी, एक तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और उसके बाद वर्क भी होगा। इसके लिए, इसकी वजह से दैट्स वाई ऑलवेज आवर सी पी वुड बी हायर देन सी वी। और उसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। तो ये आपको याद रखना है, बराबर। और हमें एक ये भी पता है कि एडियाबेटिक इंडेक्स मीन्स सी पी बाई सी वी, ये भी याद हमें रखना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर, तो उसमें जो हीट देंगे हम, उसमें जो हीट दे रहे हैं हम,
बराबर। तो उसमें मैंने आपको कहा कि अगर हीट दे रहे हम क्यूपी, तो उसका यूटिलाइजेशन किसके लिए होगा? एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए होगा, ये जो है हमें पता है इंटरनल एनर्जी है, बराबर। और दूसरा जो है वो वर्क वर्क भी होगा। पिस्टन अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वर्क हो रहा है यहाँ पे। देखो वर्क के लिए याद रखना है आपको, वर्क के लिए इक्वेशन क्या है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं, बराबर है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पी वी टू की जगह पे क्या लिख दिया? एम आर टी टू। पी वी वन की जगह पे क्या लिख दिया? एम आर टी वन। क्लियर? पी वी वन इज इक्वल टू एम आर टी वन, पी वी टू इज इक्वल टू एम आर टी टू, दैट वी कैन राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस इज द इक्वेशन। और मैंने आपको कहा कि क्यूपी जो है, क्यूपी जो है वो क्या रहेगा? एम सी पी टी टू माइनस टी वन। कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो हीट देते हैं हम, तो उसका जो इक्वेशन रहेगा एम सी पी टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ पे ये सारा टर्म तो कॉमन है, एम टी टू माइनस टी वन, एम टी टू माइनस टी वन। So finally, we can write that R is equal to Cp minus Cv, and second is gamma is equal to Cp by Cv. So by applying some of the mathematical steps, we can finally prove that Cv is equal to this, and Cp, value of Cp will be, or equation of Cp will be this. So these we will not go in detail about this. So these you can easily understand. So I hope you have understood these properly. So all these basic term will be helpful to us during the example, during solving of example. So thank you all for listening.